ठीक है, हम पेज 191 से कंटिन्यू करेंगे। लीला, ठीक है। तो देखिए हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था कि अभय की जो वाइफ थी उन्होंने अभय की भागवतम को सेल कर दिया था फॉर सम टी बिस्किट्स। सो ही वॉज लाइक इट वॉज समथिंग आउटरेजियस। तो उन्होंने तुरंत बस निर्णय कर लिया था दैट ही विल नॉट बी लिविंग विथ हिज फैमिली नाउ। तो बाद में जाने के बाद में वो अपने मतलब घर वर छोड़कर अपने गुरु भाइयों के साथ में रहने लगे थे उनके आश्रम में। और बाद में वापस से जब टाइम थोड़ा बीता तो टाइम बीतने के बाद में उनको वापस से याद आया कि झांसी में उनका मतलब ऐसा नहीं था वो भूल गए थे, बट इट्स जस्ट ही वाज लिटिल डिस्टर्ब्ड। तो इस वजह से अभी सिर्फ वो कुछ दिन अपने गुरु भाइयों के साथ रहकर आश्रम में ही वॉज पीसफुली, ही वॉन्टेड टू स्टे पीसफुली देयर, chanting Hare Krishna and talking about Krishna। फिर बाद में उनको याद आया कि झांसी में उनको जाना है, वहां पर इस तरह से बिल्डिंग में जो भी वो अपना प्रीचिंग प्रोग्राम कर रहे थे, he has to continue that। वहां पर वे गए and he took a large deity of Lord Chaitanya जो वहां पर वो इंस्टॉल करने वाले थे, और इस तरह से बाकी सारी चीजें भी। तो अब हम आगे देखेंगे। Abhay did not adopt the saffron dress of a Vanprastha but continued wearing a white dhoti and kurta. The people of Jhansi had always known him as a preacher with no family. Ever since he had first arrived a year and a half before, now he was returning to them with the deity of Lord Chaitanya and determination to establish Lord Chaitanya's temple in Jhansi. तो अब अभय ने जो वानप्रस्थी वाला जो ड्रेस होता है, सेफ्रन ड्रेस, उन्होंने वो धारण नहीं किया था। He was simply wearing white धोती एंड कुर्ता। झांसी के लोग हमेशा ये समझते थे कि वो एक प्रचारक है और उनके कोई परिवार में कोई भी नहीं है। जब से वो 1.5 साल से यहाँ पर रहने लगे हैं, और अब वापस से वो जब आए थे वहां पर तो वो चैतन्य महाप्रभु का डीटी लेकर आए थे, और he was determined to establish a temple of Lord Chaitanya in Jhansi. Abhay met with a warm welcome from Acharya Prabhakar and others, but he also met with competition for possession of the Radha Memorial. It began with a Sanskrit conference, the Bendelkhan Sanskrit Sammelan, which brought to Jhansi the governor of the province, K.M. Munshi, and his wife Leelavati. An active social organizer, Leelavati Munshi had opened several branches of the Mahila Samiti Sangha, a society that aimed at socially uplifting women by teaching them secretarial skills and English. Two educated Jhansi ladies, Chandramukhi and Suryamukhi, wanted such a women's social program for Jhansi, and they took the opportunity to approach Leelavati Munshi during her visit. She inspired them and they began to talk about where in Jhansi they could open one of her social centers. Perhaps suggested one of the ladies, the Bharati Bhavan could be used. Although Suryamukhi Sharma had been one of the sympathizers who had first approached Mr. Bhayal on behalf of Abhay Charande and had asked that he be given the Bharati Bhavan for his lake of devotees, she felt that the lady's cause was more important.
and she knew that Abhay's ownership of the buildings was not settled. The women agreed that the buildings would be an excellent facility for a Mahila Samiti Sangha branch and that their cause was more urgent than Abhay Charan's. अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको याद है जो अभय है वो किस उद्देश्य से झांसी छोड़कर गए थे वापस से कलकत्ता में? टू डू बिजनेस एंड रेज मनी. फॉर व्हाट पर्पस? इनका ये जो बिल्डिंग था झांसी में उसको ओन करने के लिए उनको लक्ष्मी चाहिए थी, तो इस वजह से वे गए थे. लेकिन अब वापस लौटने के बाद में he met with competition for possession of this building. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गवर्नर थे झांसी के KM मुंशी, उनकी वाइफ थी लीलावती. शी वॉज एन एक्टिव सोशल ऑर्गेनाइजर और वो कोई महिला समिति संघ को वो क्या कहेंगे इस्टेब्लिश करना चाहती थी. तो उसके लिए शी वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस, फॉर अ प्रॉपर्टी, फॉर अ बिल्डिंग. तो उस बेसिकली वो जो कमिटी थी उसमें वो जो भी विमेन्स होती हैं, औरतें जो होती हैं, उनको अंग्रेजी सिखाना और जो भी जो स्किल्स होती है, नीडफुल स्किल्स फॉर विमेन, स्टिचिंग एंड ऑल, वो सिखाती थी वो उनको. यस. तो इसी तरह से जो दो एजुकेटेड लेडीज थी, चंद्रमुखी और सूर्यमुखी, वो चाहती थी कि वो इस तरह से लीलावती मुंशी जो है उनकी वाइफ, KM मुंशी की वाइफ जो गवर्नर है, तो उनके साथ में मिलकर वो एक बिल्डिंग लेना चाहती थी ताकि वो इनका ये जो कमेटी वगैरह है इसको वो चला सके. अब उनकी नजर में कौन सी बिल्डिंग थी? वही बिल्डिंग विच अभय वॉज यूजिंग, अभय चरण. तो उनको ऑलरेडी पता था कि ये जो बिल्डिंग है, ये यहाँ पर ऑलरेडी जो अभय चरण दे है उनका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है. लेकिन उनको लग रहा था कि भाई सबसे ज्यादा कल्याण में चीज है औरतों का उद्धार हो. उद्धार मतलब वेलफेयर फॉर द वुमेन, जो भी वो करती हैं. तो अभय चरण दे के प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको खुद का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट लग रहा था. और उनको पता था कि जो अभय चरण दे है वो तो वैसे भी बिल्डिंग नहीं ले पा रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू अफोर्ड इट. तो अब बस वो उस बिल्डिंग को अप्रोच करने के चक्कर में थी. Suryamukhi, assured for support by governor's wife, called on A.C. Bhaktivedanta. She explained that his lake of worldwide Vaishnavas would never take shape. He was a nice person and she liked him, but she didn't think he could realize his extraordinary expectations. बात तो समझ रहे हैं आप खुद एक बार सोचकर देखिए. Is it not extraordinary? Actually, extraordinary तो बहुत ही छोटा और तुच्छ शब्द है. ट्रांसेंडेंटल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पूरे विश्व भर में भगवान कृष्ण का, who is the supreme personality of Godhead, हर जीव मात्र के पिता हैं, उनका पूरे विश्व भर में प्रचार हो. ये लगता ये कुछ इम्पॉसिबल सी ही चीज लगती है. तो ऐसा ही कुछ ये जो लेडीज थी ये सोच रही थी कि हाँ, अभय इज अ नाइस पर्सन और हमें पसंद भी है, उनको पसंद भी थे. लेकिन उनको नहीं लग रहा था कि इनका ये जो उनकी आशाएं हैं ये वास्तविक में कुछ होगा भी क्या. They were just thinking like that कि पूरे विश्व भर में वो इस तरह से प्रचार करना चाहते हैं. So they were thinking that no, this would never take shape. She suggested he vacate the
Bharti Bhavan so that the governor's wife could organize a women's social center. You can go here and there for the sake of building a temple, she told him. You are free to travel anywhere, but these poor women in Jhansi have nothing. So they must be given these buildings for their use. She found him adamantly opposed. अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है. तो वो जो भी लेडीज हैं उन्होंने अभय को सजेशन दिया कि आप इस बिल्डिंग को खाली कर सकते हैं एंड यू कैन गो समवेयर एल्स. आप कहीं और जाकर अपना मंदिर वगैरह बना सकते हैं जहां भी आपको बनाना है. और आप तो वैसे भी कहीं भी जा सकते हैं, यू कैन ट्रेवल एनीवेयर. लेकिन ये जो बिचारियां हैं, दीज पुअर विमेन झांसी में, इनका तो कुछ भी नहीं है. दे हैव नथिंग. तो इनको ये बिल्डिंग्स देनी चाहिए. लेकिन जो अभय थे, ही वॉज अडेमेंटली अपोज्ड. मतलब वो जो भी बात कह रही थी वो अपने मतलब ही वॉज अडेमेंट, वो जिद्दी थे कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे. ही वॉज अपोजिंग हर. अभय वॉज अपोजिंग दोज लेडीज. आई मीन यहाँ पर किसी स्पेसिफिक लेडी की बात हो रही है, या तो गवर्नर की बात हो रही है या व्हाटएवर, सूर्यमुखी की बात हो रही है परहैप्स. यस, okay. No, Abhay said, find another building. Abhay argued that his work was not just for a section of people, but for all living beings. Suryamukhi left frustrated. Yes, Suryamukhi की बात हो रही है. Abhay was surprised that a member of the League of Devotees was now working against him, and the maneuver was being backed by the governor's wife. अभय ने कहा, नहीं, आप कोई दूसरी बिल्डिंग जाकर ढूंढिए. अभय इस तरह से कहने लगे कि उनका ये जो वर्क है ये एक पर्टिकुलर लोगों, एक सेक्शन, मतलब एक सेक्शन के लोगों तक सीमित नहीं है. ये हर जीवात्मा के लिए है. अब जो सूर्यमुखी थी, शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड. इस तरह से उनकी सारी बात सुनकर, अरे ये मान ही नहीं रहे. और अभय इस तरह से देखकर सरप्राइज थे कि भाई ये इतना अच्छा काम है आध्यात्मिकता का, लेकिन इसके लिए भी लोग अगेंस्ट, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं. और वो भी एक गवर्नर की वाइफ का सहारा लेकर. इस तरह से बताया जा रहा है. Mrs. Munshi could work at a much more influential level without having to confront Abhay directly and without his even knowing what she was doing. After she talked with Mr. Bhayal, word got around that Mr. Bhayal had been pressured to persuade Abhay Charan to relinquish his claim on the Bharti Bhavan. Mr. Bhayal owned a cinema house in Jhansi, and there was talk that he could have a lot of difficulty with the operator's license unless Abhay Charan vacated the Radha Mill. अब ये जो मिसेस मुंशी थी, गवर्नर की वाइफ, वो अपने लेवल पर तो कुछ भी कर सकती थी. आफ्टर ऑल गवर्नर की वाइफ थी, उनको अभय से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं थी. वो तो उनको बिना बताए भी सब कुछ भी कर सकती थी वो, बिकॉज शी हैड पावर्स. तो अब उन्होंने जब मिस्टर भयाल से बात की तो इस तरह से अफवाह फैल गई कि जो मिस्टर भयाल है, he had been pressured to persuade Abhay Charan to relinquish his claim on Bharti Bhavan. और इस तरह से उन्होंने जो सिनेमा भी एक ले रखा था, सिनेमा हाउस झांसी में, मिस्टर भयाल ने, तो वहां पर भी वो इस तरह से बातें हो रही थी कि ये मतलब यहाँ का जो लाइसेंस है इसको ऑपरेट करने में उनको डिफिकल्टी होगी जब तक वह अभय चरण से वह बिल्डिंग को
खाली नहीं करवा देते। मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं, जिन लोगों के मतलब हाथ में पावर्स होती हैं, सब जानते ही हैं, तो वो अपनी पावर्स के दम पर दे कैन फोर्स अदर पीपल ताकि वो उनकी बात माने। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मिस्टर भयाल के साथ हो रहा था। In December 1954, Mrs. Munshi wrote Abhay in reference to his failure to raise the 5,000 rupees. Dear Bhakti Vedanta ji, she wrote, you wanted to organize there but you could not. But I have got this institution, Mahila Samiti. Why not give it to me? Abhay was of a mind to resist. He had lawyer friends who advised him that even though he was opposed by the governor's family, he had a good case that would stand up well in court. India's tradition of respect for religious buildings was on his side. Abhay replied to Mrs. Munshi, introducing himself as the founder of the League of Devotees. He explained the goal of League, enclosed a copy of his prospectus, and presented many statements by prominent people. Dr. Rajendra Prasad, Sri Sitaram, Raja Mahendra Pratap, and even her husband, Sri K.M. Munshi, praising the wonderful work for the League of Devotees. He also mentioned that the president of the League had recently received a 100 rupee donation in Mathura from His Excellency the Governor, Mr. Munshi himself. Abhay said that although the work had been going on slowly but peacefully in Jhansi, his mind had now been bothered by Mrs. Munshi's negotiations. He requested her not to pressure anyone about his occupying the Bharati Bhavan, though he admitted, if you or any one of your agents do try, the pressure will be more weighful. I am a non-entity in that comparison. अब आगे ये जो मिसेस मुंशी है, वो अभय को लिखती है कि आप 5,000 रुपए रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये जो बिल्डिंग है ये आप मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर चलाना चाहती हूँ, महिला समिति। लेकिन अभय वॉज ऑफ अ माइंड ऑफ रेजिस्ट। वो नहीं मान सकते थे उनकी बात को। उनके कुछ लॉयर फ्रेंड्स वगैरह भी थे जिन्होंने उनको एडवाइस किया था किस तरह से गवर्नर की फैमिली को आप अपोज भी करते हैं तो वो कोर्ट में मतलब इस तरह से ही कैन फाइट अ केस, अ गुड केस, क्योंकि उनके साइड में जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थी मतलब वो उनके पक्ष में थी। तो अभय ने उनको रिप्लाई किया, मिसेस मुंशी को, उनको इंट्रोड्यूस, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए एज द फाउंडर ऑफ लेक ऑफ डिवोटीज। उन्होंने जो ये मूवमेंट है इसका गोल उनको एक्सप्लेन किया, पूरा प्रोस्पेक्टस वगैरह उनको भेजा, सारे स्टेटमेंट्स उनको दिखाए, जो भी विख्यात लोगों से उनकी जो जानकारी थी उनके विषय में बताया कि कैसे उन लोगों ने भी इस मूवमेंट को प्रेज किया है, यहाँ तक कि उनके खुद के हस्बैंड ने भी, जो गवर्नर है। तो उन्होंने इस तरह से बताया। बाद में उन्होंने बताया कि जो इस मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं उनको भी हाल ही में मथुरा से 1,000 रुपए का डोनेशन भी प्राप्त हुआ है। तो और किन से प्राप्त हुआ है? उनके खुद के पति से ना, उनके खुद के पति देव से उनका डोनेशन प्राप्त है। तो उन्होंने इस तरह से कह रहे थे कि सब कुछ धीरे धीरे जा रहा है बट पीसफुली, शांति से जा रहा है झांसी में। तो वो यही चाह रहे थे कि वो इस तरह से उन पर कुछ प्रेशर ना डाले। ही वॉज रिक्वेस्टिंग टू हर कि इस तरह से, जब वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, इस तरह से वो डिस्टर्ब कर रही है, हमको चाहिए बिल्डिंग ये वो। तो ऐसा होता है, जैसे आप सोचिए ना, बिल्डिंग की बात छोड़िए, जैसे कोई वस्तु आपको कभी चाहिए होती थी, किसी दुकान पर आप गए, आपको कोई वस्तु पसंद आ गई, कुछ भी वो हो सकता है, और वो सेम वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ रही हो।
अब वो चाहता है कि वो ले, आप चाहते हैं आप ले, तो थोड़ा सरदर्दी नहीं हो जाता? अरे ये तो मेरे को पसंद आ रहा था, मेरे कितने काम की चीज थी, इस व्यक्ति को भी यही चाहिए, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो ही जाता है। सो वो यही कह रहे थे, ही वाज रिक्वेस्टिंग हर टू नॉट प्रेशर एनीवन अबाउट हिज ऑक्यूपाइंग द भारती भवन। उन्होंने कहा कि अगर वो इस तरह से प्रेशर करती भी हैं तो फिर वो उन पर ही भारी पड़ेगा, because he is a non-entity in that comparison. तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। Abhay hoped that by his presenting the details of his lake, she would understand that his was a better cause than the Mahila Samiti. He quoted the first 3 verses of the 4th chapter of Bhagavad Gita, wherein Lord Krishna describes how the ancient science of Bhakti Yoga is received through Parampara, the order of succession from one teacher to the next, and how kings are responsible for seeing that Krishna consciousness spreads for everyone's benefit. He also argued that since, according to Bhagavad Gita, only a few amongst thousands and thousands of men endeavor for self-realization, and since the League of Devotees engaged its members in self-realization, he was providing an important and rare service. He offered to meet with Mrs. Munshi along with some 15 sannyasis from the area and suggested that she work cooperatively with them and understand the importance of the lake. The League of Devotees was benefiting all classes. As Shri Krishna had said in Bhagavad Gita, even one of a low bird can attain the shelter of Supreme Lord. But the Mahila Samiti, Abhay pointed out, was based on bodily conceptions of caste, creed, color, and sex. Therefore, it could not be as important a cause. Abhay closed by requesting Mrs. Munshi not to try to occupy the Radha Memorial, which was already being used for a noble and well appreciated cause. He signed A.C. Bhakti Vedant, founder and secretary, League of Devotees. Very amazing. अब Abhay इस तरह से he was hoping कि वो इस तरह से सारी डिटेल्स उनको प्रेजेंट करेंगे ऑफ हिज लेक, तो वो समझेंगी कि उनका ये जो इंस्टीट्यूशन है महिला समिति, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका मूवमेंट। तो उन्होंने पहले जो 3 वर्सेस है ऑफ भगवद गीता ऑफ 4th चैप्टर वो कोट किए भगवद गीता के, जहां पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो भक्ति योग है ये किस तरह से परंपरा के द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण से आ रहा है, एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन फ्रॉम वन टीचर टू द नेक्स्ट। और किस तरह से जो राज विद्या राजगुह्यम, किस तरह से ये राजर्षियों के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त है, और कैसे जो राजा हैं, राजा का मतलब आप समझ रहे हैं, जो राज्य करते हैं, तो यस कुछ हद तक जो ये गवर्नर्स वगैरह है इनके पास में भी पावर्स हैं, तो ये एक तरह से राज्य करते हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी अब है यहाँ पर बता रहे थे कि कैसे जो राजा हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर रेस्पॉन्सिबल कि ये जो कृष्ण भावनामृत है इसका प्रचार हो, क्योंकि ये हर किसी के लाभ के लिए, तो हर किसी के लाभ के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो, कि राजाओं का कर्तव्य है। उन्होंने इस तरह से भी आर्ग्यू किया कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग बहुत ही दुर्लभ वो आत्माएं होती हैं, बहुत ही दुर्लभ, करोड़ों करोड़ों जो मनुष्य होते हैं उसमें से कुछ ही लोग जो है
वो आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये जो मूवमेंट है लेग ऑफ डिवोटीज, ये जो मेंबर्स हैं उनको आत्म साक्षात्कार में ही लगा रहा है। He was providing an important and rare service. तो उन्होंने मिसेस मुंशी से कहा भी कि वो उनके जो 15 सन्यासी हैं उनसे मिले और समझे कि किस तरह से साथ में किस तरह से काम करना कितना ज्यादा जरूरी है टू स्प्रेड दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट की गंभीरता को, इंपॉर्टेंस को भी वो समझे। तो कह रहे थे कि इस तरह से आप सन्यासियों से मिलिए, आपको मालूम चलेगा। तो अंततोगत्वा बता रहे थे कि ये जो मूवमेंट है ये सभी के लिए है, इट इज फॉर ऑल क्लासेस, सभी के लिए लाभदायक है। कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि यहाँ तक कि जो निम्न जाति का व्यक्ति है वह भी भगवान की शरण ले सकता है। लेकिन ये जो महिला समिति है, अब मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, इस तरह से पॉइंट किया कि ये जो महिला समिति है, दिस इज बेस्ड ऑन बॉडीली कंसेप्शन, देहात्म बुद्धि से ग्रसित है ये, which is limited to certain caste, creed, color, gender and all those things. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती है। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये जो मैटर था इसको इस तरह से क्लोज किया बाय रिक्वेस्टिंग हर कि वो इस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई नहीं करे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत ही महान और बहुत ही सराहनीय, वेल एप्रिशिएटेड कॉज के लिए काम में आ रही है ये बिल्डिंग ऑलरेडी। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर क्लोज किया एंड ही साइंड। Aware that he was involved in an intrigue, Abhay organized his thoughts and set down on a paper a short history outlining important events surrounding his possession of the भारती भवन। अब उन्होंने एक शॉर्ट हिस्ट्री लिखी है, आई एम जस्ट रीडिंग इट, आपको भी पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, and then we'll stop here. Let's see. Short history. इसमें इस तरह से पॉइंट्स हैं, I'm reading it, आपको पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए। I came to Jhansi sometime in October 1952. I delivered some lectures at Geeta Mandir on Gandhi Jayanti Day 1952. Made acquaintance with Prabhakar Shastri. My idea of League of Devotees implemented. He took me to Reva Shankar for Bharti Bhavan. Shri Reva Shankar agreed to hand over the Bharti Bhavan to League of Devotees and he agreed to become a member of it in the presence of Prabhakar, Mitraji and myself. I read letters from Allahabad to confirm. He confirmed my letter on 10/12/52, that is 10 December 1952. Prabhakar intimated the desire to Reva Shankar on 1 January 1953. I got the document needed for League of Devotees and came to Jhansi for signature of the members. Reva Shankar signed and agreed to become an executive member. The document was submitted for registration on 4th February 1953 at Lucknow, returned on 10th October 1953. The League of Devotees ceremoniously started 16 May 1953 and work began. So I'm occupying the building since then and continuing my work. जिस तरह से उन्होंने ये पूरी शॉर्ट हिस्ट्री आउटलाइन करते हुए लिखी कि कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ और कैसे अभी कंटिन्यू हो रहा है, समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता रही हूँ कि पहले वे झांसी आए थे कभी अक्टूबर 1952 में, फिर वहां पर उन्होंने पहली बार गांधी जयंती के दिन गीता मंदिर में कुछ लेक्चर्स दिए थे। फिर वे प्रभाकर शास्त्री के साथ में रहने लगे थे
फिर उन्होंने ये जो आइडिया था लेक ऑफ डिवोटीज का, ये उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। फिर जो प्रभाकर शास्त्री हैं वो उनको रेवा शंकर के पास में लेकर गए फॉर दैट बिल्डिंग। फिर वो जो रेवा शंकर है, हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ दैट बिल्डिंग, वो अग्री हो गए कि हाँ ये जो बिल्डिंग है ये इनको दे दी जानी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ऐसी पड़ी है, काम में आ नहीं रही है। और वो खुद भी अग्री हुए कि वो खुद भी इसके मेंबर बनेंगे। फिर बाद में उन्होंने, अभय ने इलाहाबाद से लेटर्स उनको भेजे कंफर्म करने के लिए। कंफर्म हो गया था लेटर। फिर जो प्रभाकर है उन्होंने अपनी डिजायर रेवा शंकर को बताई। फिर बाद में ये जो लेक ऑफ डिवोटीज का जो डॉक्यूमेंट है ये उनके पास में आया। वो वापस से झांसी में आए फॉर द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स। रेवा शंकर ने भी साइन किया और ही ऑल्सो अग्रीड टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव मेंबर। बाद में जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किया गया लखनऊ में, और वापस से फिर वो रिटर्न हुआ अक्टूबर में। फिर ये जो लेक ऑफ डिवोटी है इसका सेरेमनी हुआ, ये स्टार्ट किया गया मई के अंदर, और फिर काम शुरू हुआ। और इस तरह से फिर ये जो बिल्डिंग है वो इस काम में ऑक्यूपाई है और तब से ये काम चल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने पूरी शॉर्ट हिस्ट्री बताई। अब आगे का जो डिस्कशन है वी विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो, and hopefully we will be finishing this chapter tomorrow if Krishna's will. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.